اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق ہم نے ولا عذاب المحین یہاں تک پڑھا اور وراثت کے مسائل بیان کیے جو ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کل بتایا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں سگا بھائی جو ہے وہ آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، یا باپ بیٹے کا وارث نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ تو ان میں سے جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو وارث ہے اور جو مرنے والا ہے وہ دونوں، یعنی جس کی وراثت ہے وہ دونوں مختلف دین والے ہوں، یعنی مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی جو ہے نسبی رشتہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا پھر نعوذ باللہ وہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانے میں اس نے کمایا تھا اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو مرتد ہونے کے بعد کمایا وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا سارا مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ اسلام کے بعد اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد یا عورت اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کی میراث پہنچتی ہو، یعنی وہ اس کا وارث ہو، اور مثال کے طور پر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو اس کو باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، تو یہ قاتل جو بھی ہے اس شخص کی میراث جو بھی جس کو اس نے قتل کیا جو اس کی وراثت میراث یعنی کہ اس کو حصہ ملنا تھا، تو قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا جس کو اس نے قتل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قاتل وارث نہیں ہوگا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، البتہ قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنا ہے، یعنی کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس میں کچھ صورتیں اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بھی بچہ ہے تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ چلانا دشوار ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایک سے زائد بچے ہیں، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک میراث کی تقسیم جو ہے وہ ملتوی رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ اگر تقسیم کرنا ضروری ہے تو پھر ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں گی، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں وارث کو کم ملتا ہے باقی کا اس کو تقسیم کر دیا جائے گا اور باقی اس کو عمل کے بعد دیا جائے گا۔ یہ صورتیں تھیں جو کل ہم لوگ نہ پڑھ سکیں۔ آگے ہے ولاتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آئیں فاحشۃ بے حیائی کی طرف من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بنا لو علیہن اوپر ان کے اربعۃ چار گواہ منکم اپنوں میں سے، فائن شاہدوا پس اگر وہ گواہی دیں فامسکوہن پس تم روک لو ان کو فی بیوتی گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن آ جائے ان کو موت، او یا جالواہ یا رکھ دے بنا دے اللہ تعالیٰ یا کر دے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ، واللذانی اور وہ دو مرد یاتیانہا جو آئیں اسی کام کی طرف اسی بے حیائی کی طرف منکم تم میں سے، فَعَزُوهُمَا پس تم سزا دو ان دونوں کو، فَإِن پس اگر تابا وہ توبہ کریں وَاصْلَحَ اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس تم اعراض کرو ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیما رحم فرمانے والا۔ اب یہاں پہ ان عورتوں یا ان مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن عورتوں سے دو مردوں سے یا جن عورتوں سے دو عورتوں سے بے حیائی کا یعنی زنا کا کام ہو جائے، زنا کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے چار گواہ مرد طلب کیے جائیں، یعنی جن احکام کے پاس یہ معاملہ پیش جائے تو ثبوت زنا کے لیے وہ چار گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت جو شہادت کے اہل ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے، اس صورت میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔
ज़िना की गवाहों में शरीयत ने दो तरह से सख्ती की है, क्योंकि ये मामला बहुत अहम है जिससे इज्जत और इफ़्फ़त मजरूह होती है। तो अव्वल ये शर्त लगाई कि मर्द ही गवाह हो, औरतों की गवाही का एतबार नहीं किया जाएगा, और दूसरी ये लगाई कि 4 मर्दों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर है ये शर्त बहुत सख्त है, जिसका वजूद में आना शाज़ व नाज़िर ही होता है। ये सख्ती इसलिए इख्तियार की गई कि औरत का शोहर या इसकी वालिदा या बीवी बहन ज़ाती परखाश की वजह से खामखा औरत पर इल्ज़ाम न लगाएं, या दूसरे बदख्वाह लोग दुश्मनी की वजह से इल्ज़ाम और तोहमत लगाने की जुर्रत ना कर सकें। क्योंकि अगर 4 अफराद से कम लोग ज़िना की गवाही दें, तो इनकी गवाही नामोतबर है। ऐसी सूरत में मदी और गवाह सब झूठे करार दिए जाएंगे, और एक मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से इन पर हद कज़फ जारी कर दी जाएगी। जैसा कि सूरत नूर में है कि जो जिसका यानी सूरत नूर की आयत है, जिसका हासिल ये है कि जो लोग 4 गवाह ना ला सकें वो झूठे हैं। अब इस आयत के आखिर में फरमाया है कि व इन ताबा, अगर वो दोनों तौबा कर लें, व असलहा और इस्लाह कर लें, वारिज़ु अन्हुमा, बस तुम सजा एराज करो उनसे। ऊपर था औरतों का मामला, नीचे आ गया मर्दों का, तो मर्दों को सजा देनी है, लेकिन अगर वो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो फिर उनसे क्या करो, एराज कर जाओ। यानी सजा देने के बाद अगर वो तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, तो उन्होंने तौबा कर ली, तो उनको मलामत ना करो, मजीद उनको इस बात के ताने ना दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सजा मत दो, सजा उनको होगी। सजा के बाद की बात है कि बार बार फिर उनको इस चीज के ताने ना दिए जाएं। आगे है, इन्नमा बेशक, तौबा तू तौबा कबूल करना, अल्लाह अल्लाह ताला पर, लिल्लज़ीना उन लोगों की है, यामलूना जो अमल करते हैं, सूआ बुरे, बिजहालतिन नदानी से, सुम्मा फिर यतूबूना वो तौबा करते हैं, मिन करीबिन जल्द ही, फ़उलाइका पस वही लोग हैं, यतूबुल्लाहु तौबा कबूल करते हैं अल्लाह ताला अलैहिम इनकी, वकान अल्लाह और हैं अल्लाह ताला अलीमन हकीमा, अलीमन जानने वाले, हकीमन हिकमत वाले। वलैसत तौबा तो नहीं तौबा कबूल करते, तौबा कबूल होती लिल्लज़ीना उन लोगों की, यामलून सय्यात जो बुरे अमल करते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा हज़रा जब आती है उनमें से अहादुहुम उनमें से किसी एक को मौत, काला वो कहता है इन्नी बेशक मैंने तुबतुल आना तौबा की अब, वलल्लज़ीना और ना उन लोगों की, या मूतूना जो वो मर जाते हैं, वो हम कुफार इस हाल में कि वो काफिर ही होते हैं। उलाई का वही लोग हैं, आतदना तैयार किया हमने लहुम उनके लिए, अजाबन अलीमा अजाब दर्दनाक। अब यहाँ भी आ रहा है कि अल्लाह ताला तौबा उनको लोगों की कबूल करते हैं जो नादानी से गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि हमने ये गुनाह कर लिया या हमसे ये गुनाह हो गया, नादानी से हो गया, तो सुम्मा यतूबूना मिन करीब, यानी कि वो फिर जल्दी ही तौबा करते हैं, उस गुनाह पे अड़े नहीं रहते, फौरन ही जो उनसे गुनाह हुआ उसके लिए वो तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जानने वाले हिकमत वाले हैं। और किन की तौबा कबूल नहीं होती, या मलून सय्यात जो लोग तौबा करते हैं, या बुरे अमल करते हैं, नहीं तौबा कबूल होती उन लोगों की जो अमल करते हैं बुरे, फिर वो तौबा नहीं करते, यहाँ तक कि इज़ा हज़रा आती है अहदहुमुल मौत, उनमें से किसी एक को मौत आती है, तो फिर वो कहता है कि मैंने तौबा की अब। जैसा कि फिरौन था, उसने जब देखा, उसने और उसकी कौम ने देखा कि अब बस मामला मौत का है, दरिया में गर्क होने लगे, तब कहा आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, के मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। या इसी तरह वल्लज़ीना ना उन लोगों की, यमूतूना जो वो मर जाते हैं और उनको तौबा करने की तौफीक ही नहीं होती, साल वह उनका कुफार इस साल में कि वो काफिर ही होते हैं, वही लोग है तैयार किया हमने उनके लिए अजाब दर्दनाक। आगे फिर मसाइल हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अंतारिसुल निसा ये कि तुम विरासत में रखो औरतों को, करहन जबरदस्ती, वला ताजुलूहुन्ना और ना तुम रोको उनको, लितासाबू ताकि जाता रहे बाज बाज माँ आते तुमहुन्ना जो दे दिया तुमने उनको, इल्ला मगर अयातीना ये कि वो आए, बिफाहिशतिन मुबैशिना खुली बेहयाई की तरफ, व आशिरुहन्ना और तुम गुजरान करो उनसे, बिल मारूफी शरीयत के मुताबिक, फ़इन करिहतुमुहुन्ना पस अगर तुम
नापसंद करते हो उनको, फासा बस उम्मीद है, अंता करहू ये कि तुम नापसंद करो, शैयन किसी चीज को, वयजअल्लाहु और रखी हो अल्लाह ताला ने, फीही इसमें, खैरन बुलाइयां, कसीरन बहुत ज्यादा। अब यहाँ भी आ रहा है कि इन आयात में आगे है, व इन अरदतुम अगर तुम इरादा करो बदलने का, जोज मकान एक बीवी को, जोजा मकान जोज दूसरी बीवी की जगह, वातई तुम और दिया हो तुमने, हिदाहुन्ना उनमें से किसी एक को, किंतारन ढेरों मार, फला ताखुजू बस नहीं तुम ले सकते, मिनहु उससे, शैयन कुछ भी, अताखुजूनहु क्या तुम लोगे उससे, बुहतानन बुहतान के साथ, व इस्मम मुबीना और ज़ाहरा गुनाह के साथ, वकैफा और किस तरह, ताखुजूनहु तुम ले सकते हो उसको, वक़द अफ़ज़ा तहकीक पहुंच चुका, बाज़कुम बाज़ तुम्हारा, इला बाज़िन बाज़ की तरफ, व अखज़ना और लिया हमने, लिया उन औरतों ने, मिनकुम तुमसे, मीसाकन गलीज़ा पक्का वादा। ये जो तीन आयत हैं, इन तीनों आयत में उन मुजालिम की रोकथाम है जो इस्लाम से पहले जो है औरतों पर डाले जाते थे। अब पहले भी थे और अब भी पढ़े लिखे जाहिल जो हैं उनके अंदर भी ये चीज है। जुल्म पहला ये था कि मर्द औरतों की जानो माल को अपने आप को औरतों की जानो माल का मालिक समझते थे। औरत जिसके निकाह में आ गई वो इसकी जान को भी अपना मालिक समझता था और उसके मरने के बाद इसके वारिस जिस तरह इसके मुतरका माल की वारिस हो और मालिक होते, इस तरह वो उस मरने वाले की बीवी भी, तो वो उनकी वारिस विरासत में और उसको भी वो अपना मालिक समझते, चाहे वो खुद इससे निकाह कर लेते या किसी दूसरे से माल लेकर इसका निकाह कर देते। शोहर का लड़का जो उसकी दूसरी बीवी से होता वो खुद भी बाप के बाद इसको अपने निकाह में ला सकता था। ये जुल्म होते थे औरतों पर। जब औरत की जान ही अपनी मिलक समझ ली की जाती तो उसका माल तो खुद ब खुद हजम कर जाते। और दूसरा जुल्म ये था कि जो माल औरत को कहीं से विरासत में मिला या उसके मेके वालों की तरफ से बतौर हदिया कुछ मिला तो बेचारी औरत इन सब से महरूम और बेतल्लुक रहती। ये सब माल ससुराल के मर्द हजम कर लेते थे। और उसके बाद औरत ने अगर अपने हिस्सा माल पर कहीं जो है कब्जा ही कर लिया तो मर्द इसके वो निकाह करने से इसलिए रोकते थे कि वो अपना माल बाहर ना ले जा सके बल्कि यही मर जाए और उसका छोड़ा हुआ माल जो है वो हमारे कब्जे में आ जाए। कहीं कहीं ये भी होता कि बाज औकात बीवी का कोई कसूर ना होने के बावजूद वो सिर्फ इसलिए कि वो शोहर को पसंद ना होती तो शोहर इसको हकूक जोजियत अदा ना करता, मगर तलाक दे ना ही तलाक देकर इसको जो छोड़ता इसलिए, बल्कि उसको तंग करता कि वो जेवर और जो मेहर वगैरह उसको दे चुका है वो वापस दे कर, या अगर अभी नहीं दिया तो माफ कर दे तब इसको ज्यादा मिलेगी। और बाज़ औक़ात शोहर तलाक दे भी देता है लेकिन फिर भी अपनी इस मुतलका को किसी दूसरे से निकाह करने की इजाजत निकाह ना करने देता ताकि वो मजबूर होकर इसका दिया हुआ हक मेहर वापस करे या वाजिबुल औलाद जो उसने जो उसको चीजें दे दी वाजिबुल अदा चीजें वो वगैरह वो उसको दे। और फिर ऐसा भी होता कि शोहर मर गया तो इसके वारिस इस बेवा को निकाह ना करने देते। ये एक जाहिलाना किस्म की तबीयत थी, आदत थी कि जो कुछ माल हो वो इन्हीं के पास रहे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमा दिया कि पहली चीज आ गई, ऐ ईमान वालों नहीं हलाल तुम्हारे लिए ये कि तुम विरासत में लो औरतों को जबरदस्ती, ये तुम पर बात नहीं है हलाल कि तुम औरतों को जबरदस्ती, हाँ उनके खामद फोत हो गए तो वो इद्दत के बाद जहाँ चाहे निकाह कर सकती हैं, तुम उनको रोक नहीं ले सकते। और अगर है लेकिन एक शर्त है वो है कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि तुम लोग उसको निकाह से इसलिए रोकते हो, वला ताज़ुलूहुन्ना ना तुम रोको उनको, लिताज़ाबू बिबाज़िम मा आतैतुमूहुन्ना यानी औरतों को अपनी मर्जी का निकाह करने से ना रोको, इस ख्याल पर कि जो माल तुमने या तुम्हारी अजीज ने उसको बतौर महर के दिया या बतौर हदिया तोहफे के दिया वो इससे वापस ले लो। अब इस तरह, और दूसरी चीज ये कि इल्ला अन यातिना बिफाहिशतिन मुबैयिना, हाँ अगर वो खुली बेहयाई की तरफ आए, यानी अगर जो औरत है
नाउज़ बिल्लाह वो बेहयाई या ज़िना करती है और बेहयाई का काम हो जाने के बाद वो नाफरमानी और बदज़ुबानी से भी पेश आती है, जिससे मजबूर होकर मर्द तलाक पर आमादा होता है। तो चूंकि कसूर औरत का है, इसलिए शोहर को यह हक हासिल है कि इसको इस वक्त तक अपने निकाह में रोके रखे जब तक कि वो अपने दिया हुआ माल वापस वसूल ना कर ले या मुकर्रर करदा जो मेहर है वो उससे वापस माफ ना करवा ले। आगे है, लेकिन इसके अलावा कोई भी जो है सूरत नहीं कि आपने अगर आप इरादा करते हो एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को बदलने का, यानी एक को तलाक दे के किसी और से निकाह करना चाहते हो और उनमें से तुमने एक को ढेरों माल दे रखा हो, 4 बीवियां हैं उनमें से या 3 हैं उनमें से किसी अब और से शादी करना चाहते हो तो एक को तलाक देना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में तुमने इनमें से किसी एक को ढेरों माल दे रखा हो, फला ताखुजू मिन्हु, बस नहीं तुम ले सकते उससे कुछ यन कुछ भी। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक मसला आता है कि जो जब मर्द औरत को तलाक देते हैं, यहाँ पे हमारे माशरे में ये रवाज है कि जो उस मेके से जो बेचारी सामान या जो कुछ लेके आई होती है उसमें से भी हम चीजें गुम कर लेते हैं, उसमें से भी हम चीजें रख लेते हैं, हालांकि जो मर्द ने उसको कपड़े जूते जेवरात और जो कुछ दिया होता है वो उससे लेने का हक नहीं रखता। यहाँ पे भी आ गया कि अगर तुम वो बात है कि अगर ताखुजूना हो बुहतानम व इस्मम मुबीना, क्या तुम लेते हो उससे उससे बुहतान से और इस गुनाह ज़ाहिरा से, यानी क्या तुम चाहती हो कि बीवी पर जिना, यानी कि एक सूरत है कि बीवी ने जिना हो, वो बेहयाई और बदकारी की तरफ आती हो, चर्ब जुबान हो, तो इस सूरत में आप उसे हक महर जो है या उसकी जो चीजें आपने शादी के मौके पे जेवर कपड़े उससे दिए थे, उसके मेके के नहीं, वो तो उसी के, वो तो वो लेगी। हाँ, जो तुमने दी है वो सिर्फ इस सूरत में तुम लोग ले सकते हो जब वो जिना की तरफ आए, लेकिन बेहयाई की तरफ आए, लेकिन अगर उसके अंदर ये चीज नहीं है तो अगर तुम चाहती हो कि बीवी पर जिना वगैरह के बहतान लगाने का खुला गुनाह करके अपना माल वापस लेने का रास्ता निकालो, ये कम गुनाह है। आप बीवी पर जिना की तोहमत लगाओ तो ये बहुत बड़ा गुनाह है सिर्फ माल लेने के लिए। यानी जब ये मालूम हो चुका कि दिया हुआ माल वापस लेना सिर्फ इस वक्त जायज है जब बीवी किसी गलत हरकत की मुर्तकब हो, तो अब इससे माल वापस लेना दर हकीकत इसका ऐलान करना है कि इसने अगर कोई बेहयाई की हरकत की है, ख्वाह वो इस पर तोहमत जुबान से लगाए या जैसे भी लगाए, तो ये इसमम मुबीना, अल्लाह ताला ने फरमाया खुला गुनाह है। आगे वो कई फता खुजूना, किस तरह तुम ले सकते हो उसको, वक़द अफ़ज़ा बाज़कुम इला बाज़िन व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, कि तुमने औरतों से मुकम्मल फ़ायदा उठाया और इन औरतों ने तुमसे पुख्ता और मजबूत वादा लिया था, और ये वादा यानी इस अक़द से मुराद निकाह का अहद लेना है, निकाह का वादा लेना है कि अब तुम लोग अगर उसे छोड़ रहे हो तो उससे कुछ भी लोगे तो बहुत सख्त गुनाह है।